morning student. Today we are going to discuss about question answers of chapter 8 getting to know plants. So let's start with short question answers from your science textbook. First question is differentiate between taproot system and fibrous root system. Taproot is a single root that called the primary root comes out from the seed after germination. Later smaller roots are called lateral roots or secondary roots that branches out from this primary root. For example, neem, mango, carrot, radish and turnip. Fibrous roots that grow from the base of the stem have a bushy appearance. These roots are thin and almost equal in size. For example, grass, maize, wheat, onion and sugarcane. Children, I already explained you about the difference between taproot and fibrous root. Today I am having example of taproot and fibrous root. See, this is called fibrous root. It's an example. Grass का plant है ये. It's an example of grass plant. So grass has fibrous root. So fibrous root में आप देख रहे हैं एक स्टेम की टिप से कितनी सारी फाइबर की जैसी थिन स्ट्रिंड्स निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं. सो दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी रूट, और ये जनरली किस में होते हैं फाइब्रस रूट, ये शर्ब्स जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये जनरली मिलती है. अब हम टैप रूट की बात करते हैं तो टैप रूट में सबसे पहले एक प्राइमरी रूट होती है. प्राइमरी रूट जिस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर ये एक प्लांट है, इसमें ये प्राइमरी रूट होती है. प्राइमरी रूट से कई छोटी छोटी स्मॉल जो होती है रूट्स आप देख रहे हैं इसके अंदर निकल रही हैं. ये छोटी छोटी स्मॉल रूट्स, ये स्मॉल रूट्स जो होती हैं ये होती हैं लेटरल रूट्स, जो सेकेंडरी रूट जिसे हम कहते हैं, है ना. तो फाइब्रस रूट और टैप रूट में क्या डिफरेंस होता है चिल्ड्रन कि फाइब्रस रूट के अंदर जो ये रूट्स होती हैं ये एक स्टेम के टिप से निकलती है, बुशी अपीयरेंस देती है और ज़्यादा डीपर ग्रो नहीं करती. जबकि प्राइमरी रूट में क्या होता है, ये एक लंबी प्राइमरी मेन रूट होती है सबसे पहले जिससे सेकेंडरी रूट्स निकलती है ना. तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन द टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर prop roots. Prop roots, children, I have explained you. Roots of a plant such as bamboo, sugar cane gives out extra root from their branches. These roots grow downwards and gives extra support to the stem of the plant. These are called prop root. जो stems होते हैं sugar cane और bamboo के, उनसे जहाँ joint होता है वहाँ पे कुछ extra fiber के जैसे roots निकलती हैं that gives the support to the stem. Okay, so these are called prop root. Now third question is how do stems of grapes help the plant to climb? Stems of climbers such as grapes plant are modified to form special structure that is called tendrils. These help the grapes plant to climb. Children, tendrils are a coiled, they are thin strand-like structure which coiled around the object. जिसका भी support उसको मिलता है उसके चारों ओर coiled हो जाते हैं and they give the support to the stems because stem of climber trees, climber plants are very thin and weak, so they need support. They are not able to stand straight. They need support to grow. So these stems are modified into tendrils which give the support to the stems to grow. आगे उसको सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट भी ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो कर सके. नाउ व्हाट इज वेनेशन? नेम द टू टाइप ऑफ वेनेशन विथ वन और एग्जांपल ऑफ ईच. सो अरेंजमेंट ऑफ वेन इन अ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. Its venation is of two type, parallel and reticulate. Parallel is the venation in which veins run parallel to one another from base to the tip. For example, banana and onion. Reticulate venation, they arrange in a net-like pattern on both sides of the midrib. So these are two venation. Children, मैंने आपको explain किया था about the parallel venation. See, पैरेलल वेनेशन, दिस वन इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल वेनेशन. ये मेज़ की लीफ है चिल्ड्रन, जो ज़्यादातर फाइब्रस रूट जिनमें होती है उनमें पैरेलल वेनेशन होता है. इसमें वेन का आप अरेंजमेंट देख सकते हैं. दे आर सिमिलर टू ईच अदर, मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर, है ना. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड मिड रिब के जो हैं ये पैरेलल जा रही हैं. देखिए स्ट्रेट, इसके साथ साथ में स्ट्रेट चल रही हैं. सो ये क्या होता है, फ्रॉम बेस टू टिप, ये मिड रिब के साथ में पैरेलल चल रही है. तो इस तरह की वेन्स को हम क्या बोलते हैं, दिस अरेंजमेंट इज नॉन एज पैरेलल वेनेशन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेटिकुलेट वेनेशन, सो मैं आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ पीपल लीफ. सी,
द नेट लाइक वेनेशन, इसमें क्या है चिल्ड्रन, मिडरिप के साथ में नेट लाइक स्ट्रक्चर में चल रही हैं वेंस, इसमें से भी कई स्मॉल जो है वेंस निकली हुई हैं। आप अगर इसको किसी लाइट सोर्स के थ्रू देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा चिल्ड्रन। तो इस तरह का जो वेनेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, विच इज़ जनरली फाउंड इन टैप रूट, द plants which has tap root, and this one is parallel venation or parallel arrangement and reticulate arrangement of leaf. आप देख सकते हैं these are known as venation type, two type of venation, parallel venation and the reticulate venation. Okay, done children. Now next is, why are the flower of some plants brightly colorful and have sweet smell? Many flowers are brightly colored and have a sweet smell to attract insects such as bee. When the insects sit on the flower, the pollen grains stick to its body and may get rubbed off when it sit on another flower. This help in pollination. Children, किस तरह से फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। तो जैसे इंसेक्ट्स उनके ऊपर बैठता है, सो स्टेमन के ऊपर बैठते ही एंथर जो होता है, एंथर प्रोड्यूस द पाउडर लाइक सब्सटेंस दैट इज नॉन एज पोलन ग्रेन्स, वो उसकी लेग्स पे स्टिक हो जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठता है या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे उसको रब करता है तो ये पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा से ओवरी में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है ना। तो ओवरी में जो एग्स होते हैं वो पॉलिन्स के थ्रू से मिलकर फिर बाद में सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है, दैट इज़ टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इतना डिटेल में हम लोग इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, ओनली राइट दिस कि हाउ द इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, आप सिर्फ इतना लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्राइब विथ एग्जाम्पल हाउ रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर एडिशनल फंक्शंस। Roots are modified, main points लिखने चिल्ड्रन, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, some roots starch which is produced in during the photosynthesis process, so they are edible for us. सो ये लिखना है आपको फर्स्ट पॉइंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। देन मल्टीप्लिकेशन, जो डहलिया प्लांट होता है, रूट्स ऑफ डहलिया दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, हर रूट्स जो होती है एवरी रूट गिव राइज अ न्यू प्लांट, सो डहलिया कैन डेवलप इनटू new plants, roots of dahlia, so they help in multiplication. Now for nutrition, dodder roots help to absorb the water and nutrients from the host plant. Here dodder is a parasitic plant which absorb the water and nutrients from the other plants. इसमें क्या होता है, root of the dodder plants help the that plant to absorb the nutrients from the other plants stems and roots. तो इस तरह से वो host plant होता है जिसका nutrient ये लोग absorb करते हैं. Now for climbing, help the plant to climb up and support, example, for example money plant, some stems are some roots are modified into tendrils that give the support to the stem, okay, like money plant है ना. For tendrils, not tendrils, they are roots which जो निकलती हैं उसके स्टेम से और डाउनवर्ड की तरफ ग्रो करती हैं। और अगर मनी प्लांट की बात करें तो वो जो भी ऑब्जेक्ट आती है उससे स्टिक हो जाती है ना, तो ये रूट्स टेंड्रिल में कन्वर्ट नहीं होती है, दे आर नॉट टेंड्रिल। स्टेम्स में जो होते हैं वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होते हैं एंड लीफ जो होती है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट होती है। रूट्स जो होती हैं अलग से ग्रो करती है स्टेम्स से, और ये फाइबर लाइक रूट्स जो होती हैं ये बैम्बू वगैरह में सपोर्ट का काम करती है, और मनी प्लांट वगैरह में ये स्टिक होकर उसको ऊपर की तरफ ग्रो करने में मदद करती है। नाउ फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बैम्बू और शुगर कैन में एक्स्ट्रा निकलती, बैनियन ट्री में रूट्स निकलती है दैट ग्रोज डाउनवर्ड एंड help the stem of the plant. These are known as prop root. So these six are the modification of or additional function of roots, okay, for storage of food, multiplication, nutrition, climbing, and to give extra support to the plant. Now next is describe the function of stem. Function of stems, children, it hold leaves in position, help them to spread out as the stem and its branches grow. पूरे ब्रांचेस को और लीव्स को स्प्रेड आउट होने में स्टेम्स मदद करता है एंड इट बियर फ्लावर्स, बर्ड, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो. It conduct the water and minerals salt from the roots to the leaves, and it carry the food manufactured by the leaves to other parts of plant. So its work act like a pipeline which transport the food and water and minerals which are absorbed from the root side, and the food which is जो कि during photosynthesis बनता है, that food and water are transported by the stem
to all over the parts of plant. Okay, now a green stem has chlorophyll and carry out photosynthesis. If we talk about the desert plant, so leaves convert into spines to reduce the rate of transpiration. So water vapor का water loss नहीं होता कि, तो इसमें food prepare कौन करता है? Stem has chlorophyll to so it has chlorophyll, so stem prepare the food for plant थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो इस तरह से स्टेम जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है इन डेजर्ट, मेनली इन डेजर्ट प्लांट्स. नाउ इट हैज़ नोड्स फ्रॉम विच लीव्स और बर्ड अराइज. स्टेम्स पे जो नोड्स होती हैं वो लीव्स को अराइज करती हैं. बर्ड्स जो होती हैं उसकी ग्रोथ में, स्टेम की ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं ना, उससे ब्रांचेज अराइज होती हैं. सो दीज आर सम फंक्शन ऑफ स्टेम्स. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ डज इट हेल्प द प्लांट. सो द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेटेशन. मतलब जो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर जो होता है, जैसे हमारे बॉडी से कैसे वाटर टॉक्सिन्स निकलते हैं स्वेट के फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, सेम इसी तरह प्लांट से भी एक्सेस वाटर जो होता है, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं दैट आर फाउंड अंडर साइड द लीफ ऑफ अंडर साइड द लीफ ऑफ प्लांट. सो इन स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो होता है वाटर वेपर की फॉर्म में एक्सेस वाटर निकल जाता है, दैट इज़ नॉन एज ट्रांसपिरेटेशन. इसकी ये ज़्यादा ना हो, ये किस तरह से हेल्प करता है प्लांट की, इट हेल्प टू कूलिंग द लीव्स. वाटर वेपर निकलने से उसकी जो सरफेस होती है वो कूल रहती है. एंड ड्यूरिंग ट्रांसपिरेटेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू compensate from the lost water. This water brings along important nutrients from the roots which are required by the leaf. Thus transpiration help in the transport of nutrition within the plants. मीन्स चिल्ड्रन, जो वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से वाटर निकलता है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जो रूट्स होती हैं उनसे स्टेम जो होता है उस रूट्स से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर थ्रू द स्टेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो इस समय जो एब्जॉर्व किया जाता है रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स, उनके साथ में कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. ओके, तो ट्रांसपिरेटेशन के थ्रू जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको एब्जॉर्प्शन का काम थ्रू द रूट बहुत ईजीली हो जाता है. नाउ ट्रांसपिरेटेशन ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल. तो इस तरह से वाटर वेपर जो होता है वो फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है, तो और रूट वहाँ से फिर वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस रेनफॉल, पहले एवेपोरेशन होता है उसका, जिससे कंडेंसेशन होकर अगेन प्रेसिपिटेशन के थ्रू रेनफॉल जो होती है, सॉइल में पानी चला जाता है, फिर से वो रूट से एब्जॉर्व कर लिया जाता है. तो ये एक तरह से वाटर साइकिल में भी हेल्पफुल होता है. सो how the transpiration is help the plant. Now define pollination. What happened to the different plant of the flower after pollination? In this you have to write the definition and the two type of pollination. Like transfer of pollen grains from anther to stigma is pollination, very simple definition. Now the describe the सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो, बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो आपको इसमें डिटेल में लिखना है. दैट ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द प्लांट सेम प्लांट इज सेल्फ पॉलिनेशन, एंड एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, नाउ इसमें आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं और किस तरह से ये व्हाट हैपन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर आफ्टर पॉलिनेशन. द फ्लावर पार्ट, द ovary changes into a fruit, and under suitable condition the seed convert into a baby plant. Okay, तो ये आपको इतना सा इसके अंदर लिखना है. Now next is what are the four main part of flower, describe them in detail with the help of labeled diagram. Children, as we know, a flower is a reproductive organ of a plant. सिंपल सा आपको लाइन लिखना है. इसके बाद में आपको जो भी पेज नंबर लास्ट जो आपका दिया हुआ है जिसमें आपको डायग्राम के साथ में डिटेल दी हुई है स्टेमन, कार्पल, पैटल की, वो डायग्राम आपको इसके अंदर बनाना है एज इट इज़, और डिटेल कंटेंट जो है इसके साथ में लिखना है. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसका आंसर डिटेल में नहीं दिया है. यू हैव टू राइट योर सेल्फ, यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम फ्रॉम द बुक. आपको अपने आप बनाना है और अपने आप उसकी डिटेल उस डायग्राम के साथ में जो दी हुई है वो उसके साथ ही बनानी है, उसके साथ ड्रॉ करनी है. ओके, सो दीज आर ऑल क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर चैप्टर 8 गेटिंग टू नो plants. Do all the question answers in your science fair notebook. Thank you.